गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आई होप ऑल डूइंग अ गुड। सब घर में अपने अच्छे होंगे, सेफ होंगे, हेल्दी होंगे। ठीक है, जो हमारी आज की क्लास है वो हमारा लेक्चर नंबर 3 है। ठीक है, लेक्चर नंबर 2 हमारा हो चुका है, विद एक्सप्लेनेशन के साथ हुआ है। ओके, और लेक्चर नंबर 3 आज हम बस एनसीईआरटी सिर्फ आज एनसीईआरटी ही रीड करेंगे, और कल जब एक लेक्चर लेंगे तो उसके साथ में ही लेक्चर 3 वाला एक्सप्लेन करने के बाद फिर लेक्चर नंबर 4 वाला हम सब साथ में करके खत्म कर दिया जाएगा चैप्टर कल। ठीक है, तो लेट स्टार्ट। बिना टाइम वेस्ट किए अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी पढ़ते हैं। यहाँ तक हम लोगों का हो गया था। ठीक है, एक मिनट कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही एक्सप्लेन कर, मैं ऐसे ही कर देती हूँ, मेरे को सब कुछ चौपट हो जाता है। Respiratory volumes and capacity, timed volume TV, volume of air in respired expired during a normal respiratory, it is exposed 500 ml. A healthy man can inspire, जो healthy man होता है वो is inspire of expires approximately 6000 to 8000 ml of air per minute. वो पर मिनट में अपनी जो सांस होती है उसको वो 6000 से 8000 तक के उसमें ml में बाहर अपने अंदर लेता है, मतलब इंस्पर एंड एक्सपेयर, मतलब अंदर और बाहर दोनों करता है। ठीक है, in respiratory was volume IV, IRV. Additionally, volume of air and a person can be inspired by a vacuumly in respiration. This average to 2500 ml to 8000 ml. Expression is reserved volume ERV. Additionally, volume of air a person can express by a vacuumly expression. This average 1000 ml, sorry, 1000 ml and to 1100 ml. Residual volume RV, volume of air in the lungs even after a foreseeable expiration. This averages 1100 ml to 1200 ml. By adding up a few respiratory volumes described above, one can derive variation per pulmonary capacities which can be used in clinical diagnosis. In respiration capacities, IC total volume of air a person can inspire after a normal expiration. This including triad volume and in respiratory reverse volume TV plus RV. Expiratory capacitors EC total volume of air a person can expire after a normal in respiration. This includes triad volume and expiratory reverse volume TV plus ERV. Functionally resisting capacity FRC volume of air that will remain in the lungs after a normal expiration. This includes ERV plus RV. Vertical capacities VC, the maximum volume of air a person can breathing in volume of air a person can breathing out after a forced in respiration. Total lung capacity, total volume of air accumulated in the lungs at the end of a force in respiration. This includes RV, ERV, TVR, TRVR, vertical capacitors plus in रेसिस्टुलर वॉल्यूम। अब हम आते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस पे। स्टूडेंट, यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट बता दीजिएगा। वैसे कल हम इसका पूरा एक्सप्लेनेशन करेंगे जैसे इसका किया था। गॉट इट? ठीक है, अब मैं पहली चीज तो इसका भी एक्सप्लेन करना था। कल मुझे कहीं जाना था, कल भी हम कहीं गए थे, आज भी हमको कहीं जाना था, इसलिए मैं नोट्स बना नहीं पाई थी। तो जब नोट्स बना लेंगे कल तो फिर कल लेक्चर 4 में ही एक्सप्लेन कर दिया जाएगा, और कल ही शायद हमारा लेक्चर भी खत्म, कल भी हमारा शायद चैप्टर भी खत्म हो जाए।
लेट देखती हूँ कि कितना पेजेस बचे हैं हमारे अब, उसी हिसाब से पता चलेगा ना कि कितने लेक्चर्स बचे हैं अब हमारे। ठीक है, वेट। अब हम लोग आ गए हैं अपने एक्सचेंज ऑफ गैसेस की तरफ, समझ लो। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, कैसे जो है गैस का अदला बदली करी, मतलब मैं हर चीज से अपने आप परेशान रहती हूँ। चलो, alveoli are the primary site of exchange of gases. Exchange of gases also occur between blood and tissues. O2 and CO2 are the exchange in these sites by simple diffusion, mainly based on the pressure on the concentrations, gradient, solubility of the gases, as well as the thickness of the membranes included in diffusion are also some important factors that can affect the rate of a diffusion. Pressure contributed by an individual gas in a mixture of gases is called the particular pressure, and the representation as PO, P pressure O2 for oxygen, P CO2 for carbon dioxide, parental pressures of these two gases in the atmospheric air, and the two sides of the diffusion are given in table 7.1. ये two side of diffusion का given table में दिया गया है, and in the data given the table clearly indicate concentration gradient for oxygen from alveoli to blood and blood of tissues. Similarly ये देखो respiratory gases O2, CO2, एटमॉस्फेरिक एयर इसमें होती है 159, CO2 में होती है 0.3, एल्वियोलाई 104, CO2 में 40, ब्लड डीऑक्सीजनेटेड 40 O2 में, CO2 45 में, ब्लड ऑक्सीजनेटेड O2 में 95, CO2 में 40, टिश्यूज 40, 45। ये टेबल हल्का सा देख लीजिएगा, इसमें वैसे नीट में ये चीज आती नहीं है पूछने के लिए, लेकिन एनटी का कोई भरोसा नहीं, एनटी का भी कोई दे सकता है। ठीक है, ये बात पढ़ लीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत है तो पूछिएगा। ठीक है, ये हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस का पूरा एल्वियोलाई का पूरा डायग्राम है। ये देखो, ये हमारा है एल्वियोलाई एयर। इसमें हम लोग यहाँ से हम लोग सांस लेते हैं अपने नाक से, इन रेस्पिरेशन एयर ये अंदर जा रही है, एल्वियोलाई एयर PO2 द 140 mg एल्वियोलाई में गई है, ये हमारी एक्सपेयर मतलब बाहर हो रही है। ठीक है, उसके बाद फिर हमारा जो CO2 है वो बाहर जाता है, हम O2 अपने अंदर लेते हैं। ये चीज हमारी पूरी, ये हमारा जो CO2 है, ये हमारा जो है O2 है। ठीक है, सिस्टमैटिक वेन्स रिक्वायरिंग डीऑक्सीजनेटेड, ये पूरा इसमें देखो टेबल जो बनी थी इसमें वो सब लिखा हुआ है। ये हमारे पुलमोनरी आर्टरी है, ये हमारी पुलमोनरी वेन है, हमारे इसमें O2 जाता है, इससे हमारा O2 बाहर जाता है, इससे हमारा O2 बाहर अंदर जाता है, इससे हमारा CO2 बाहर जाता है। ठीक है, इसको हम अच्छे से कल एक्सप्लेन कर देंगे पूरा डायग्राम को। ओके, a gradient is present for CO2 in the opposite direction from tissues to a blood and the blood to the alveoli. इसमें जो डायग्राम हमारा ऊपर दिया इसी के बारे में नीचे दिया हुआ है। of CO2 is a 20-25 times higher than that of O2. The amount of CO2 that can diffusion through the diffusion membrane per unit of diffusion in patent pressure and higher compared that is O2. The diffusion membrane made up of the major naming and the seminose epithelium and the alveoli endometrium and alveoli capacitance and the basement substance in between them. In total thickness is much less than and the millimeter. Therefore, all the factors in our body are the variable for diffusion of O2 from alveoli to tissues and that of CO2 from tissues alveoli. ये हमारा डायग्राम है एल्वियोलाई पल्मोनरी कैपिलरी का। ठीक है, इसमें देखो हमारा बेसमेंट सस्पेंड ये है, ये हमारा रेड ब्लड सेल्स है, ये हमारा ब्लड कैपिलरी है,
ये इससे ब्लड हमारा जाता है अंदर, इससे ब्लड, ये हमारी एयर ऑक्सीजन निकालती है, ये हमारी एल्वियोलाई कैविटी है, एल्वियोलाई वॉल 1 सेल थिकनेस, इसको भी हम अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे पूरा। आज बस यहाँ तक पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ एनर्जी का, सॉरी गैसेस का। Blood is the medium of a transport of CO2 and CO2. About 97% of O2 is transported by RBC in the blood. The remaining 3% of O2 is carried in the dissolved state through the plasma. Near 20-25% of CO2 is transported by RBC, where 70% of it is carried as bicarbonate. About 7% of CO2 is called the dissolved state through plasma. अब मैं देखती हूँ कि क्या हम लोगों को कल पढ़ना है और हम लोगों का अपना चैप्टर कब खत्म होगा, क्या होगा, पूरा डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये हमारा है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑर्गेनाइज ऑक्सीजन। ठीक है, इसको हम लोग कल करेंगे। ठीक है, ये लेक्चर भी हमारा रिकॉर्डेड रहेगा, और जो ये वाला लेक्चर है लेक्चर नंबर 3, ये भी रिकॉर्डेड रहेगा। ठीक है, हाँ जी। अब कल हम लोग ये पढ़ेंगे, ये हमको थोड़ा सा चार्ट भी कल पढ़ाना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा, इसको भी एक्सप्लेन किया जाएगा कल। कल हमारा ये होगा, आई थिंक कल चैप्टर खत्म हो जाएगा हमारा। ठीक है, थोड़ा सा कल लंबा चैप्टर ले लीजिए लेक्चर, हाँ लो कल चैप्टर खत्म इतना। परसों ऑन ट्यूसडे स्टार्टेड न्यू चैप्टर, ह्यूमन फिजियोलॉजी में न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, या फिर आप ही लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा कि आप लोग को कौन सा चैप्टर अपना पढ़ना है। गॉट इट? किसी को कोई कंफ्यूजन हो, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई उसमें इशू की बात नहीं है। ये हमारा लेक्चर जो है आपको मिलेगा लेक्चर नंबर 3 7 PM पे। उसका मैं आवाज, वॉइस सब कुछ चेक करके उसके बाद ही अपलोड करूंगी। पब्लिश होगा इसलिए क्योंकि उस दिन काफी प्रॉब्लम हो गई थी, मैंने देखा था। ये लेक्चर 3 है ना हमारा, उस दिन बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, दोबारा मुझे लेक्चर बनाना पड़ा था क्योंकि आवाज ही नहीं आ रही थी। पूरा मैं 30 मिनट का बना चुकी थी, 30 मिनट्स का पूरा लेक्चर हो चुका था, लेकिन आवाज ही नहीं आ रही थी बिल्कुल भी, तो मुझे दोबारा बनाना पड़ा लेक्चर, दोबारा अपलोड किया फिर। चलिए ओके, थैंक यू सो मच। आज का लेक्चर बहुत छोटा है, 15 मिनट से भी कम का लेक्चर है आज का। फिर एनसीईआरटी पढ़ाई है, नोट सब बन जाएंगे तो कल साथ में ही हम पूरा एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, आई थिंक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। किसी को कोई प्रॉब्लम हो, किसी को कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा। और प्लीज आज का लेक्चर आप लोगों को मेरा अच्छा लगा हो, आप लोगों को कुछ थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करिए। जो लोग मेरा ये लेक्चर नए, जो कोई मेरा ये चैनल फर्स्ट टाइम देख रहा है वो सब्सक्राइब करे। ठीक है, लाइक करे, कमेंट करे, और जो लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं वो वेल एंड गुड। और जो हमारे न्यू चैनल में कोई आया है, हमारे न्यू मेंबर है, तो वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। मेरा चैनल अच्छा लगा, मेरा लेक्चर आज का अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में थोड़ा सा कमेंट कर दीजिएगा। प्लीज थोड़ा सा, कुछ भी हार्ड बना दीजिए, कुछ भी, जो भी आप कमेंट करिए प्लीज। ओके, थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं हम लोग। बाय बाय, टेक केयर।